Uh, Today we can discuss about the wind circulation. कैसे wind होता है या atmosphere में इसका circulation कैसा होता है. असली में in our syllabus we have only planetary wind and monsoon. So we can go in detail regarding this planetary wind and monsoon. Monsoon is actually seasonal wind है. Planetary wind बोलने से पूरा planet में जो wind होता है उसको we will say it as planetary wind. And seasonal means there is seasonal variation in the direction of the wind. That is actually the seasonal wind. तो इसमें से we want to study about the monsoon. तो planetary wind के साथ है एक और है local wind. लेकिन we don't have to study. There are a lot of local winds like sea breeze, land breeze, valley breeze, here mountain breeze. ऐसा बहुत कुछ इसका different local winds है. But we don't have that in our syllabus. We have only planetary wind and the monsoon. So we concentrate more on these two wind. Let's see each of this in detail. So पहले when we say about a wind, it is actually a stream of air in a fairly well defined direction. एक wind का एक stream होगा, नहीं ये तो एक channel होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका ब्लो होगा. दैट इज कॉल्ड एक्चुअली ए विंड. तो ये कैसे होगा? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर. एक जगह में इफ देयर इज कंटिन्यूअस, अभी मेनली हम बोला है जो भी एनर्जी वेरिएशन है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ सन. तो सन का रेडिएशन से क्या होगा? लैंड सरफेस गर्म हो जाएगा. तो गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? दैट इज देयर विल बी हाई टेम्परेचर. देयर विल बी हाई टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. तो बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर इस जगह का जो प्रेशर है दैट विल बी कन्वर्ट टू लो प्रेशर एरिया. यहाँ प्रेशर कम होगा. तो temperature and pressure is actually inversely proportional most of the time. There are some exceptions, but regarding the wind it is like that. There will be high temperature due to continuous insolation. जो कल बोला था insolation continuous होने से there will be high temperature. तो high temperature होने के वजह से there will be low pressure. And जो सामने वाला जहाँ sunrise तो बहुत inclined होकर नहीं है तो कुछ चीज के वजह से कुछ जगह में ऐसा होगा there will be low temperature. There will be low temperature. So if there is low temperature there will be high pressure. यहाँ क्या है? इनकमिंग इंसुलेशन कम होगा इस जगह पे, वो जो रेडिएशन है हीट एनर्जी यहाँ कम होगा तो क्या होगा? that will raise the pressure of that particular area. That is high pressure. Like अभी ठंडा एक जगह है, ये हिली एरिया कूल एरिया है तो उधर प्रेशर ज्यादा है. अभी कुछ हॉट एरिया इक्वेटर रीजन है उधर तो क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है. बिकॉज ऑफ दिस थिंग देयर विल बी लो प्रेशर. तो इसका डिफरेंशियल प्रेशर सिस्टम आ जाएगा. देयर विल बी लो प्रेशर एंड देयर विल बी हाई प्रेशर. तो क्या होगा? द विंड स्टार्ट मूव्स फ्रॉम, विंड नहीं एयर, असली में एयर स्टार्ट मूव फ्रॉम this high pressure center to this low pressure center. High to low. So ऐसा stream of air will move in a particular direction. Which direction? From high pressure area to the low pressure area. So this kind of movement of air due to the difference in pressure, we will say it as wind. Because of high temperature there will be low pressure, and because of low temperature there will be high pressure. Wind start moving from high pressure to low pressure area, and that we will usually say it as the motion. This motion we will usually say it as wind. So moves from high pressure area to low pressure area. And इसका velocity तो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो इसका तो अपना एक स्पीड होगा, and which is controlled by the magnitude of the pressure gradient. अभी यहाँ लो प्रेशर बोल दिया तो यहाँ सोचो 100 मिलीबार है प्रेशर.
एंड लो प्रेशर 100 मिलीबार। एंड यहाँ सामने एक जगह है where there is high pressure, वो हो गया 1000 मिलीबार हो गया। तो यहाँ से ये तो बहुत जल्दी विंड आएगा, बट इंस्टेड यहाँ 100 था एंड यहाँ अभी 400 है। तो क्या होगा, 400 टू 100 आने के लिए उतना ये नहीं है, तो यहाँ विंड का वेलोसिटी कम होगा। लेकिन यहाँ क्या है, विंड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है 1000 टू 100 आने के लिए। सो दैट इज एक्चुअली द ग्रेडियंट। तो 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 एंड 100, उतना ग्रेडियंट है। तो देखने से 1000 यहाँ है, 1000 इतना ऊपर है, तो इतना ग्रेडियंट होगा नीचे तक आने के लिए। बट सोचो इफ इट इज 400, यहाँ यहाँ से यहाँ तक है, तो बहुत ग्रेडियंट तो कम है। इसलिए क्या होगा, विंड का वेलोसिटी भी कम होगा। दैट इज डिपेंडेबल ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। ये भी याद रखना है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा। इफ द हाई प्रेशर वैल्यू इज हाई and low pressure value is very low, their wind velocity will be increased. And if the low pressure is comparatively better, उतना low नहीं है, और high pressure उतना comparatively उतना high नहीं है, तो क्या होगा, wind velocity will come down. So that will define the velocity. पहले wind का direction और wind का movement control करेगा high pressure to low pressure. And when it is earth, there is some more force which controls the direction of the wind. There is some force which controls the direction of the wind, and that force we will usually say it as Coriolis force. That force we will usually say it as Coriolis force. ये Coriolis force क्या है? Due to the rotation of earth, the direction of the wind changes, or wind will deflect due to the rotation of the earth. अभी देखो wind direction ऐसा है, this is earth and this is equator. तो इसका इसमें because of the rotation, तो this is east and this is west. तो यहाँ से यहाँ ना, सॉरी यहाँ से यहाँ, वेस्ट टू ईस्ट है इसका तो रोटेशन, इसलिए ईस्ट पहले आ रहा है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट इसका रोटेशन हो रहा है। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द विंड विल डिफ्लेक्ट टू इट्स राइट। यहाँ ऐसा है, अभी ऐसा एक तो विंड आ रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन होगा राइट। तो ऐसा ऊपर एक तो जा रहा है, उसका डिफ्लेक्शन होगा राइट, ऐसा in the northern hemisphere due to Coriolis force. And in the southern hemisphere the wind will deflect towards its left. अभी ये हो गया southern hemisphere, तो यहाँ कैसा है, यहाँ इसका लेफ्ट साइड में ये तो डिफ्लेक्ट होगा, इधर आने से ऊपर आने से इसका लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे आने से इसका लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। तो लेफ्ट साइड में in the southern hemisphere wind will blow towards its left, and in northern hemisphere wind will deflect or blow towards its right because of this Coriolis force. And the principle behind this deflection is known as the Farrell's law. ये जो डिफ्लेक्शन है राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर राइट है, ये जो डिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड Farrell's law. And the force which changes this direction we will say it as Coriolis force. तो इतना सा याद रखना है when we are studying about the atmospheric circulation. Circulation when we say usually we will say it's about wind. बड़ा होगा छोटा होगा, जो एयर का मूवमेंट है मोस्टली we will say about the wind, नहीं तो एयर मास का मूवमेंट होगा, and that is also being controlled by the wind. तो यहाँ wind action है high pressure to low pressure,
and अभी pressure gradient, pressure difference between low pressure and high pressure is high, there will be high velocity, and if the low pressure and high pressure between the value is less, क्या होगा? There will be low velocity, and in the northern hemisphere the wind will deflect to its right, and in the southern hemisphere the wind will deflect to its left because of Coriolis force, and the principle of this deflection is known as the Ferrel's law. तो मेजर अभी आप देखो, दिस इज ऐसा, अभी देखो यहाँ विंड, दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन है ये, तो यहाँ क्या हो गया ऊपर से, तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन राइट साइड में हो गया, यहाँ राइट साइड में, एंड दिस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रहा है एंड इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स राइट, तो इसमें क्या हो गया ऐसा उल्टा हो गया, तो ऐसा जाना था नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, डिफ्लेक्ट होके ऐसा हो गया, अभी ऐसा आना था बट डिफ्लेक्ट होके ऐसा हो गया, हियर कैसा है ऐसा आना था लेकिन यहाँ ऐसा डिफ्लेक्शन हो गया है सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड जो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जाना था एंड दैट हैज बीन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये तो ऐसे हो गया. That is how the wind has been changed its motion. And as there is a general condition that the wind will get its name from its coming from, इसका डायरेक्शन कौन सी जगह से वो विंड आ रहा है, वो उससे बेसिस we will say about the name. अभी वो वेस्टर्न साइड से आएगा तो we will say it as westerlies. If it is coming from eastern side, we will say it as easterlies. तो westerlies हो गया the wind which is coming from. अभी ये देखो ये west to east जा रहा है, पर असली में ये तो साउथ जो नॉर्थ जा रहा था, because of this Coriolis force ये हो गया west, this is हो गया east, तो this is known as westerlies. असली में क्या बोलेगा साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्टर्लीज, इसे बोलेगा साउथ वेस्टर्लीज, साउथ वेस्ट से आ रहा है, इसे बोलेगा नॉर्थ ईस्टर्लीज, इसे बोलेगा क्योंकि दिस इज नॉर्थर्न साइड एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ये तो आ रहा है, इसलिए वी विल से इट एज नॉर्थ ईस्टर्लीज. ये तो हो गया साउथ वेस्ट से आ रहा है तो इसे बोलेगा साउथ वेस्टर्लीज. इन कॉमन वी विल से इट एज westerlies and easterlies. Then because of the solar energy hits at the equator, क्या होगा the warm air and forms a low pressure zone. क्या होगा अभी इक्वेटर रीजन में क्या होगा, जैसे हम बोल दिया है उधर बहुत टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा एयर विल राइज अप, तो उधर क्या होगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो मीन दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर, so there will be at the equator region there will be low pressure. यहाँ देखो at equatorial region because of continuous, उधर तो continuous है solar radiation, तो इसमें क्या होगा इस जगह पे होगा एक low pressure region, so that is first pressure belt. फर्स्ट लो प्रेशर बेल्ट होगा इक्वेटर सेंट्रल रीजन में, वो ऐसे होगा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट द इक्वेटर, द एयर वार्म्स एंड रेस एंड फॉर्म्स ए लो प्रेशर जोन एट दिस पर्टिकुलर रीजन. तो क्या होगा आफ्टर द वार्म एयर राइज अप, वो तो राइज हो गया एंड मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. अभी इक्वेटर ये तो इस जगह पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे आ गया, तो क्या होगा सोचो दिस इज द ग्राउंड सरफेस, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये हीट होके ये ऊपर आ जाएगा ये जो रीजन है, सो दिस इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन, यहाँ एयर राइज होकर ऊपर ऐसे आ जाएगा, एंड ये तो क्या होगा यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से बाहर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से इस डायरेक्शन में
और इस डायरेक्शन में ये तो मूव करेगा। सेंटर में आ गया, एक तो नॉर्थन साइड में जाएगा, एक तो साउदर्न साइड में आएगा। जैसे पहले ऊपर आएगा, उधर से डिफ्लेक्ट होकर एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट साइड में जाएगा। तो क्या होगा, इट विल मूव फ्रॉम हियर एंड हियर। The warm air rises and move away from equator. The moving air at troposphere, then troposphere, stratosphere तो बोल दिया है लास्ट क्लास में, तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर तक है, उधर तक ये तो मैक्सिमम मूव होगा। उसके बाद क्या होगा, दिस मूविंग एयर देन कूल्स, वो ऊपर जाने से एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर देयर विल बी -70 डिग्री है, तो उधर टेम्परेचर बहुत कम है बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में भी वी हैव डिस्कस यस्टरडे। तो उधर ऊपर जाने से -70 तक आ जाएगा। उधर दिस वो राइसन अप, वो हॉट एयर था वो आगे कन्वेक्शन, ड्यू टू कन्वेक्शन वो ऊपर आ गया एंड इट गेट्स कूल्ड डाउन एंड क्या होगा, डिसेंट्स, वो नीचे आएगा बिटवीन 25 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्म्स ए हाई प्रेशर जोन देयर। अभी देखो ये तो इधर गया, आ गया है ऊपर से, तो इधर ये तो नीचे आ जाएगा बिकॉज यहाँ क्या है, वो डंडा वाला आ रहा है, तो डंडा वाला एयर आ रहा है, तो ये दोनों जगहों पे डंडा वाला एयर आ रहा है, तो क्या होगा, वो डिसेंट यहाँ आकर एक जगह पे आकर मिड latitude 25 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में आकर यह तो डिसेंट करेगा और सरफेस में आने का कोशिश करेगा। तो क्या हो गया, उधर हो गया हाई प्रेशर सेंटर एंड दिस हाई प्रेशर सेंटर वी विल यूजुअली से इट एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेंटर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेंटर दो होगा, वन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड अनदर वन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो फास्ट लो प्रेशर होगा इक्वेटोरियल रीजन में, ऑलमोस्ट नियर टू ट्रॉपिकल है, तो ट्रॉपिकल के बाद आएगा सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल में आएगा वो जो वार्म होकर ऊपर आ गया, ट्रोपोस्फियर तक आ गया है, वो ठंडा हो जाएगा उधर तक आने से एंड इट विल मूव, इट विल डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन एंड रीचेस द 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड में ये तो आ जाएगा एंड देन इट गेट डिसेंट, वो तो नीचे बिकॉज ऑफ वेट इट विल कम, वो एयर नीचे आ जाएगा एंड दैट रीजन वी कैन से इट एज सब ट्रॉपिकल हाई रीजन। तो यहाँ हो गया एक हाई प्रेशर, यहाँ हो गया एक लो प्रेशर। फिर क्या होगा, the air is sucked back towards the low pressure at equator and the subpolar region। तो इधर ये तो नीचे आ गया, यहाँ हाई प्रेशर हो गया, तो इफ यू लुक हियर यू कैन सी लो प्रेशर हियर आल्सो, लो प्रेशर हियर आल्सो। तो क्या कर, ये सरफेस जो आएगा उसको तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो नीचे, यहाँ से ये वापस आ जाएगा बैक टू इक्वेटोरियल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन से। तो कुछ तो क्या होगा, यहाँ से वो जाएगा सब पोलर रीजन में, सब पोलर रीजन में ये नीचे वाला एक तो ऐसे जाएगा, तो देयर विल बी मोशन लाइक दिस, यहाँ से यहाँ जाएगा। ये हो गया सेंटर इक्वेटोरियल रीजन। देन सब ट्रॉपिकल में क्या हो गया, ऊपर आकर ये तो ऐसे आकर यहाँ डिसेंड होकर नीचे आएगा एंड दैट विल बी डिफ्लेक्ट टू इक्वेटर में, एक तो सक करके लेके जाएगा, दूसरा क्योंकि दैट इज लो, तो विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, तो क्या करेगा, तो हाई प्रेशर से ये तो नीचे सरफेस में लो प्रेशर जाएगा दोनों तरफ एंड इट विल रीच द सबपोलर रीजन एंड द इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ का पूरा हो गया, एक सर्कल यहाँ पूरा हो गया है, यहाँ भी पूरा हो गया है। नाउ इफ यू लुक देयर विल बी कंटिन्यूएशन, यहाँ तक एक विंड यहाँ से जा रहा है, थोड़ा सा सब पोलर रीजन में जा रहा है। so that is been explained. There are two high pressure zones at each poles. From there also wind moves towards the south polar region. If you look here, this is polar region, यहाँ polar region है, यह polar region का मतलब है high pressure
बिकॉज उधर बहुत ज्यादा ठंडा है, उधर टेम्परेचर नहीं है। तो क्या होगा, इफ द टेम्परेचर इज लो देयर विल बी हाई प्रेशर। तो यहां से भी इस हाई प्रेशर से भी इस लो प्रेशर में आ जाएगा, दोनों तरफ से। इफ यू लुक है हियर, यहाँ हो गया पोलर रीजन, तो यहाँ से भी ये आ जाएगा ठंडा पानी, तो इधर आ जाएगा, लाइक यहाँ से ऊपर, यहाँ से ये दोनों नीचे से ऐसा आ जाएगा। तो इफ यू लुक, यहाँ भी नीचे है, यहाँ से एक तो पोलर रीजन में आ रहा है, यहाँ पोलर रीजन से सब पोलर रीजन में यहाँ भी आ रहा है, तो नीचे का हो गया। तो वी हैव लो प्रेशर इन बिटवीन। तो ये तो फोर्सफुली बन रहा है, क्योंकि यहाँ एक हाई प्रेशर सेंटर है, यहाँ एक हाई प्रेशर सेंटर है, तो ये दोनों से एक तो डिफ्लेक्ट होकर दूसरा आ जाएगा, तो बीच में कुछ जगह होनी चाहिए, देयर विल बी लो प्रेशर एरिया तो होनी ही चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम दिस टू हाई प्रेशर सेंटर। यहाँ से विंड आएगा, यहाँ से विंड आएगा, तो यहाँ मर्ज होगा ये तो इस जगह सेंटर रीजन में, एंड दैट सेंटर वी विल यूजुअली से इट एज सब पोलर low pressure center. And finally at the equator there will be polar high. So we have how many polar high pressure center? Two at polar regions, 1 2 polar region, then subtropical में 2, total 4 high pressure center और high pressure belt होगा हमारे लिए। एंड लो प्रेशर कितना होगा, इक्वेटर में है सब पोलर लो एंड सब पोलर लो, तो 3 लो प्रेशर सेंटर्स होगा। एंड क्या होगा, बिकॉज ऑफ द सेम, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड विल ब्लो। सो दिस इज हाउ द प्रेशर सिस्टम ऑफ द अर्थ इज कंस्ट्रक्टेड। ये तो ऐसा है, इक्वेटोरियल रीजन में ड्यू टू कंटिन्यूअस हीट, उधर इक्वेटोरियल रीजन में देयर विल बी लो प्रेशर। तो ज्यादा प्रेशर और लो प्रेशर, ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, उधर से विंड ऊपर, सॉरी ये एयर ऊपर आ जाएगा, आसमान में आएगा, ट्रोपोस्फियर में आ जाएगा। वो क्या, कौन सी वाला, वो गर्म हवा ऊपर आ जाएगा, आकाश में आ जाएगा। तो क्या होगा, उधर वो कूल हो जाएगा एंड इट विल मूव टुवर्ड द सेंटर। वो डाइवर्ट होगा, इक्वेटर से डाइवर्ट होकर दोनों साइड में जाएगा, तो बीच में क्या होगा, वो ठंडा होकर वो फिर नीचे आ जाएगा, एट सब ट्रॉपिकल हाई रीजन में आ जाएगा। तो एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया, तो इधर से विंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर एंड द सब पोलर रीजन में ये तो मूव करेगा। तो दैट इज हाउ दिस सब ट्रॉपिकल हाई हैज बीन क्रिएटेड। So we have a polar region. तो polar region में भी already there is high pressure. जैसे इक्वेटर में बहुत ज्यादा इंसुलेशन मिलता है, like in polar region में there is feeble insulation. तो यहाँ बहुत कम है इंसुलेशन, बहुत कम मिलता है। तो क्या होगा, because of low temperature there is already exist a high pressure belt उधर पहले से है। तो ये दोनों हाई प्रेशर से विंड विल स्टार्ट मूव, तो ये दोनों साइड से भी विंड आएगा। तो ये जब मर्ज होता है, दैट एरिया देयर विल बी लो प्रेशर, बट इक्वेटोरियल लो प्रेशर मींस इसका मतलब है पूरा हाई टेम्परेचर है उधर, लेकिन यहाँ उतना टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। बट व्हेन कंपेयरिंग टू सब ट्रॉपिकल हाई एंड पोलर हाई, देयर विल बी लो टेम्परेचर एट सब पोलर रीजन। So that is how the pressure belt system of the earth is distributed. तो ये याद रखना है, ये पूछेगा what is the pressure belt system, how is the pressure belt system of the world is arranged, ये तो पूछ सकता है। तो ये हो गया। Next we can go for different kind of cells. Same just I told you अभी इक्वेटोरियल सरफेस बना देगा, दिस इज द अर्थ सरफेस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर पोर्शन में इक्वेटर है, तो इक्वेटर में क्या होगा, यहाँ सोलर रेडिएशन कंटिन्यूस है, सन है,
तो क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर सेंटर है, तो यहाँ से एयर विल राइज, ये तो ऊपर आ जाएगा, हाई से आ जाएगा। एंड ये सब पहले बोल दिया है, अगेन फॉर एक्सप्लेनिंग द सेल, व्हाट इज सेल, ये तो हम बोल देगा। तो ये हो गया, यहाँ से विंड ऊपर आ गया टिल ट्रोपोस्फियर के नीचे तक, ये तो आ गया है। तो यहाँ आने से दिस इज एक्चुअली वार्म एयर, एंड वार्म एयर राइसेस अप एंड विल गेट कंडेंस्ड, ये तो कूल हो जाएगा at troposphere, because there the temperature is -70 degree, that we have studied when we studied about the layers of atmosphere, structure of atmosphere, जब we studied we have gone through that। तो यहाँ आने से ये कूल हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ट होकर दोनों तरफ जाएगा, दिस कूल एयर यहाँ से ऐसा ऊपर से आ जाएगा। तो क्या होगा, एट 25 डिग्री, बिटवीन 25 डिग्री एंड 35 डिग्री ये नीचे डिसेंड होकर सरफेस में आ जाएगा। तो दैट वी हैव, इसी रीजन को हम बोलेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेंटर तक ये तो आ जाएगा। तो इधर आ गया, यहाँ से दोनों साइड ऐसे आ गया है, एंड इट विल स्टार्ट डिसेंडिंग एट 25 to 30 डिग्री, 35 के बीच में ये तो डिसेंड हो गया। तो यहाँ से एक गया है इसी तरफ, एक गया है इसी तरफ, लेकिन दूसरा गया है, दिस इज एक्चुअली हाई प्रेशर सेंटर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेंटर, दोनों STH, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। तो यहाँ डिसेंड हो गया, एक तो ऐसा आ गया, एक तो दूसरा वापस यहाँ इक्वेटर तक आ गया, यहाँ भी डिसेंड होकर यहाँ इक्वेटर तक आ गया, ये तो थोड़ा ऐसे गया है। तो क्या हो गया, यहाँ फिर ये तो यहाँ से विंड आ जाएगा, एंड यहाँ बर्थ टेम्परेचर ज्यादा है, एंड इट विल राइज अगेन, ये तो ऊपर जाएगा। सो दिस विल बिकम ए सर्कल, एक सर्कुलर मूवमेंट, इफ यू लुक यू कैन सी ए सर्कुलर मूवमेंट, इक्वेटर से ट्रोपोस्फियर तक, ट्रोपोस्फियर से अगेन 25 to 30 डिग्री के बीच में आएगा, सब ट्रॉपिकल हाई में, उधर से वो फिर नीचे आएगा, उधर से वापस इक्वेटर जाएगा। लाइक द सेम हियर आल्सो यू कैन सी ए सर्कुलर movement. So this movement we will say it as Hartley cell, because it was found by Hartley. तो ये हो गया Hartley cell हो गया। देखो इक्वेटोरियल रीजन है, तो ये तो राइस, एयर राइस हो गया है इधर, इधर से दैट विल मूव टू दोनों साइड में, ये तो मूव होके, ये तो ब्लू कलर का डंडा है, कूल होकर सब ट्रॉपिकल रीजन में आ गया है, एंड इधर इट विल डिसेंड, उधर से डिसेंड होगा, फिर वापस इट विल कम बैक टू इक्वेटर, ऐसा इसका मूवमेंट। तो देयर विल बी टू सर्कुलेशन एंड एट द इक्वेटर, so that kind of movement we will say it as Hartley cell. Then second one is Ferrel cell or the mid latitudinal cell. So this is Hartley cell हो गया, हम अभी दिखा देगा what is Ferrel cell. तो सेकंड सेल इज Ferrel cell, ये तो ऐसा है जो डिसेंड हो गया है एट सब, वी कैन गेट दिस अंडर सब ट्रॉपिकल हाई रीजन में, जो इक्वेटर से ये जो ठंडा होकर आ रहा है दैट विल कम हियर, यहाँ आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई में, ये विंड डिसेंड हो जाएगा, एक जाएगा इक्वेटर के तरह, दूसरा जाएगा सब पोलर लो प्रेशर सेंटर में, ये तो जाएगा नीचे से, एंड as it moves, ये तो कैसा है, दिस इज वार्म एयर, यहाँ से वार्म एयर ऐसा आ रहा है एक साइड में, फिर इफ यू लुक हियर, यहाँ से पोलर साइड से दूसरा एक तो विंड यहाँ से आ रहा है पोलर साइड में, दिस इज पोलर रीजन, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर है, यह सब पोलर लो प्रेशर है, दिस इज पोलर हाई रीजन।
तो ये पोलर हाई से भी आ रहा है ठंडा विंड, कोल्ड विंड यहाँ आ रहा है। तो यहाँ आकर ये तो मर्ज होगा ये दोनों, एंड व्हाट हैपेंस इज यहाँ थर्मल एक्टिविटी का कुछ नहीं है, यहाँ से ये जो वार्म एयर है वो फिर ऊपर जाएगा। वार्म एयर डजंट मीन दैट इट इज टू मच हॉट, इट इज एक्चुअली कोल्ड एयर इटसेल्फ, लेकिन कंपेयर्ड टू दिस कोल्ड, यहाँ से जो ठंडा बहुत ठंडा आ रहा है उससे कंपेयर करने से ये तो थोड़ा गर्म है, वही है, फिर भी वी कैन से इट ये तो ऊपर ऐसे आ जाएगा। एंड यहाँ क्या होगा, यहाँ से एक तो वापस जाएगा ऊपर से, ये ऊपर आकर फिर ठंडा होकर यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई तक ये तो विंड मूव होगा, ऐसा रोटेट करके जाएगा। दूसरा कुछ पोर्शन पोलर रीजन में भी वापस जाएगा, बिकॉज दिस इज कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर, यहाँ से नीचे से पूरा ठंडा है तो थोड़ा ठंडा है, तो ऐसा ये भी पोलर रीजन में जाएगा, दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ सब पोलर लो प्रेशर रीजन टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन के बीच में भी एक तो ऐसा सर्कल बन गया है। फिर लुक हियर, यहाँ से गर्म पानी जा रहा है, गर्म हवा जा रहा है, वो ऊपर से ठंडा होकर वापस आ रहा है। तो क्या होगा, दिस सेल इज एट द मिड लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड का सेंट्रल पोर्शन है, मिडिल एरिया है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मिडिल लैटिट्यूडल सेल्स, और we will say it as Ferrous cell. So this is how the Ferrous cells okay right both, अभी देखने से can see this happens in both side, दोनों side में you can expect it. So this is actually the Ferrous cell. Then coming to the polar, तो polar region में कैसे होगा, इसका तो ऑलमोस्ट हो गया है, बोल दिया है। So let it be सा पोलर लो प्रेशर है, यहाँ से जो गर्म हवा आ रहा है that will come here from subtropical high से जो गर्म आ रहा है, एंड सब पोलर से एक तो बहुत ठंडा आ रहा है, तो ये मिक्स होगा एंड ये ऊपर जाएगा। एंड व्हेन कंपेयरिंग दीज टू विंड, ये तो बहुत ठंडा है, ये तो थोड़ा ठंडा है, ये ऊपर आ जाएगा। थोड़ा क्या होगा, ये एक कुछ पोर्शन सब ट्रॉपिकल हाई में जाएगा, बाकी तो सब ट्रॉपिकल लो से पोलर रीजन आ जाएगा, पोलर रीजन आ जाएगा, एंड देयर इट विल डिसेंड, ये तो वापस डिसेंड करके नीचे आ जाएगा एट द पोलर रीजन, and it will again moves to subpolar low, from polar high to subpolar low region में ये तो rotate है। So there is a circular motion here also. If you look here, you can see the circular motion, and that kind of motion we will say it as polar cells. This is polar cells. तो इतना सा नाम, ये cells को याद रखना है, Hartley cell, Ferrous or mid latitudinal cells, and the polar cells. Then finally we can go to the planetary winds. तो ये सब सेल हो गया है। अभी विंड के बारे में भी I already explained you, and now see what are the planetary. तो यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, मिड लैटिट्यूडल हाई प्रेशर है, then subpolar low pressure है and polar high pressure है। तो ये बोल दिया है, तो wind blows under the influence of permanent or planetary pressure belt. तो planetary winds are those winds which are blowing on the basis of this pressure system or pressure belt, जो अभी तक बोल दिया है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मिड लैटिट्यूडल हाई प्रेशर, सबपोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर, इन सब प्रेशर बेल्ट के बीच में जो विंड ब्लो करता है वही विंड को वी विल से इट एज प्लैनेटरी, बिकॉज दिस विंड्स ब्लोस थ्रू आउट द प्लैनेट
this wind is blowing. So that is why it got its name planetary winds, entire planet. So there are mainly three planetary winds. One is trade wind for the easterlies. Second one is mid-latitudinal westerlies, or is it, or we will say it as south westerlies, and finally the polar easterlies. Trade wind or easterlies, or we will say it as south easterlies. नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्टर्लीज बोलेगा ये स्ट्रेट विंड को, and the mid latitudinal westerlies and the polar easterlies. So these are the major planetary wind. ये तो कैसे होगा? अभी देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, मिड लैटिट्यूडल हाई प्रेशर है, तो क्या होगा? विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर तक विंड ब्लो करेगा. तो असली में ऐसा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसा विंड ब्लो करेगा. बट हियर आई हैव told you regarding the Coriolis force. In the northern hemisphere, wind will deflect towards its right. When it is blowing, the wind will deflect towards its right. तो यहाँ क्या हो गया? ऐसा वाला था, but because of the Coriolis force or because of the rotation of the earth, क्या हो गया? The wind has bent towards its right or deflect towards its right. तो ऐसा शेप आ गया, ये निकल गया, ये शेप नहीं है अभी. क्या तो ये चेंज होकर इसी डायरेक्शन में आ गया. दैट इज कॉल्ड, अभी दोनों साइड में, तो ईस्टर्न साइड नॉर्थर्न साइड में ऐसा हो गया, तो क्या होगा? यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ तो विंड विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये क्या कर दिया? लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गया. सो ये इरेज हो गया, जो डायरेक्ट आना था वो इरेज हो गया, एंड वो इसी डायरेक्शन में. तो इन दोनों साइड में, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेंटर, these winds we will say it as trade winds. The wind blows from east to east. This is eastern side, and this is western side, and this is the northern side, and this is southern side. So the wind blows from eastern side to western, easy direction, eastern side to western direction में है. So we will say it as easterlies. You will say it as easterlies. And either we can say this wind is blowing between subtropical high pressure to equatorial low, or the wind is blowing towards equatorial low or the intertropical convergence zone. क्योंकि यहाँ if you look, यहाँ से एक विंड आ रहा है, यहाँ से एक विंड आ रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ कन्वर्ज होगा. ये भी इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये भी इधर ये विंड आएगा, तो दो विंड यहाँ कन्वर्ज होगा. ऐसा पूरा जो भी हो इसके अंदर आएगा, यहाँ कन्वर्ज होगा दिस रीजन में. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द इंटर ट्रॉपिकल रीजन है, इधर कन्वर्जन जोन है. ये तो दिस इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और इसे बोलेगा डोल्ड्रम्स. ये नाम याद रखना है. ऑल आर सेम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर सेंटर और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन और डोल्ड्रम्स. सो why it is known as trade wind? Because for trading, यहाँ से कुछ चीज को लेके यहाँ तक आने के लिए, अभी वो मिड लैटिट्यूडल एरिया से कुछ इक्वेटर तक लेके जाने के लिए उसी in olden days we were using ship. तो क्या होगा? This will help in the movement of ship. वो क्यों कर सकता था? So that has helped in trade activities. That has helped in trade activities, and so the wind get its name trade wind. This easterlies, which is blowing from mid latitudinal high to the equatorial low, we will say it as
trade winds. Next है westerlies or mid latitudinal westerlies. मिड लैटिट्यूड वेस्टर्ली, ये तो कैसे होगा? तो द विंड विल ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट। ये तो ऐसा है, यहाँ मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सब पोलर लो तक ये तो ब्लो करेगा। तो यहाँ एक हाई प्रेशर है, तो यहाँ से द विंड विल ब्लो लाइक दिस फ्रॉम, एंड ड्यू टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू डिफ्लेक्शन मेड बाय दिस कोरियोलिस फोर्स, ये तो ऐसा इसी डायरेक्शन में इसका बेंड होगा और डिफ्लेक्शन होगा। ये भी ऐसा ऐसा आना था, बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स दिस लेफ्ट, ये तो ऐसे हो गया है। तो क्या हो गया? विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, दिस वेस्टर्न साइड टू दिस ईस्टर्न साइड, so that is why it is known as the westerlies. The wind get its name from where it comes from, that is why it is known as the westerlies. So wind blows from west to east, wind attain high velocity due to the presence of ocean in the southern hemisphere due to low friction. अभी इस मिड लैटिट्यूड और वेस्टर्लीज को दूसरा कुछ नेम्स है, आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि इन द सदर्न हेमिस्फीयर because of the presence of ocean, southern hemisphere में we know that maximum area is oceanic part है, तो oceanic part उधर ज्यादा है, इसलिए उधर फ्रिक्शन कम है, विंड का तो फ्रिक्शन कम है, तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो उसी जगह पे मिड लैटिट्यूडल वेस्टर्लीज को स्पीड ज्यादा हो रहा है इन सदर्न हेमिस्फीयर, एंड it has got the name roaring 40s in 40 degrees south latitude. तो साउथ लैटिट्यूड है, तो इसी जगह पे इसका मिला है roaring 40s, and when it comes to the 50 degrees south, it will be known as furious 50s, FF, furious 50s, and when it comes to 60 degrees south, it is known as the screeching 60s. So you have to remember these names. Roaring 40s, what is roaring 40s? ये पूछ सकता है. What is furious 50s? पूछ सकता है. What is screeching 60s? ये you पूछ सकता है. That is actually the mid latitudinal westerlies. Because of the presence of ocean, the friction will get reduced and the velocity of the wind will become high, and that will create that will increase the speed of the westerlies, and it's in at 40 degree southern hemisphere, it will got its name roaring 40s. In 50 degrees south, it got its name furious 50s, and in 60 it is known as the screeching 60s. And finally the polar easterlies. Polar easterlies, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, दोनों साइड पे हाई प्रेशर है पोलर रीजन से, and it will goes to subpolar low में ये तो blow होगा, and because of the deflection towards left in the southern hemisphere and it's right towards in the northern hemisphere, there will be the wind comes from east to west direction, and that is why it is known as polar region से आ रहा है, so it's what is named polar easterlies. So these three are the planetary winds. तो हम सोच अभी प्लैनेटरी विंड्स तो पूरा हो गया है, इसमें ये सब पूछने का बहुत चांसेस है. रोरिंग व्हाट इज रोरिंग 40s, व्हाट इज फ्यूरियस 50s और व्हाट इज स्क्रीचिंग 60s है पूछने का चांसेस है. नाउ वी कैन गो टू द सीजनल विंड. वेरी इंपॉर्टेंट है मानसून, लेकिन यहाँ वी विल स्टडी जस्ट अबाउट सम ऑफ द बेसिक्स. क्या है चाहते हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. यस सर. वो हम बोल देगा, अभी मानसून पड़ाता है ना, उसी टाइम पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आ रही है, इसलिए तो हम वो उधर उतना ज्यादा नहीं बोला है ना, हम इधर बोल देगा. मानसून में है, बहुत जरूरी है उधर. ओके.
when I explain monsoon, I will explain intertropical convergence zone. Okay. So monsoon is actually a seasonal wind hai. That means the wind will reverse its direction based on season. अभी हॉट सीजन है ना, ये तो कूल सीजन है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, और जो भी सीजन है क्या होगा, द विंड विल चेंज इट्स डायरेक्शन, उसका विंड का डायरेक्शन ये तो चेंज करेगा। ये कैसे करेगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। It happens, this monsoon is usually visible in tropical region. Tropical region means अभी इक्वेटर है, इक्वेटर का 10 to 15 डिग्री इस जगह पे, from up to here in both hemisphere, northern and southern hemisphere. This region we will say it as tropical region. So usually क्या है, this monsoon happens at this tropical region. तो पहले तो ऐसा था, we have a explanation for the monsoon, that is actually we will say it as thermal theory of wind, land and ocean differential heating. इसके वजह से मानसून हो रहा था, यही कॉन्सेप्ट था। तो हम बोला है विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। तो क्या होगा, अभी सोचो इन जून टाइम, मार्च अप्रैल मई, ये सब टाइम में सन का पोजीशन होगा इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो यहाँ क्या है, लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया है, जो ये अभी देखने से दिस इज इक्वेटोरियल रीजन बोलने से इक्वेटर ऐसे जाएगा, तो यहाँ लैंड एरिया बहुत ज्यादा है। तो लेटेंट हीट, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ लैंड इज कंपैरेटिवली वेरी हाई, वो तो जल्दी हीट हो जाएगा। एंड ओशन इज एक्चुअली वाटर, वाटर ऐसा है वो तो धीरे हॉट हो जाएगा और धीरे कूल हो जाएगा, ठंडा भी बहुत धीरे होगा, गर्म भी बहुत धीरे होगा। दैट इज द पेक्युलरिटी ऑफ वाटर। बट ऑन द ऑपोजिट साइड वाटर, लैंड में कैसा है, लैंड एरिया में लैंड ऐसा है वो तो जल्दी हॉट हो जाएगा, नहीं तो गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। सो देयर इज डिफरेंस इन द लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड एंड ओशन। तो इस टाइम में इफ यू लुक इन मार्च अप्रैल मई, इसी टाइम में क्या हो गया, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इन द लैंड एरिया, लैंड एरिया में। तो क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। एंड दीज आर एक्चुअली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज ओशियन, ओशियानिक पार्ट है। तो ओशियानिक पार्ट है तो हियर वो उतना ज्यादा लो प्रेशर उधर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो पानी धीरे से ही हॉट हो जाएगा एंड द सन इज एट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर भी है, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा। ओशियानिक पार्ट में हाई प्रेशर एंड इन द कॉन्टिनेंटल पार्ट देयर इज लो प्रेशर। तो क्या होगा, wind start blowing from high pressure to low pressure in the tropical region. So that kind of explanation. So this is actually called the monsoon. Monsoon का movement कैसा है? Usually there is two kind of monsoon. One is south-west monsoon and the north-east monsoon. तो क्या होगा, यहाँ इक्वेटर क्रॉस कर दिया, ये तो हाई से आ रहा था बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द इक्वेटर के पहले इन द सदर्न हेमिस्फीयर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आ रहा है, लेकिन यहाँ इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इज लेफ्ट, बट व्हेन इट कम्स टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यहाँ से ये तो राइट होकर ऐसा बेंड होकर ऐसा कॉन्टिनेंट में आ जाएगा। तो जितना भी कॉन्टिनेंट हो उधर, जितना भी कॉन्टिनेंट हो उधर क्या होगा, इक्वेटर क्रॉस करने से ये तो ऐसे यहाँ से जो पानी लेके आएगा यहाँ बारिश गिरा देगा। तो दैट इज हाउ द साउथ वेस्ट मानसून वाज हैपेंड। ये हो गया एक थर्मल थियरी का साउथ वेस्ट मानसून का एक्सप्लेनेशन। अभी दूसरा है सेकंड टाइप
तरह का, दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये तो कैसे होगा, इसका एक्सप्लेनेशन है अभी। नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम क्या होगा, सन तो इसी इक्वेटर है, इसी डायरेक्शन में। जून के बाद, जून तो एक्सट्रीम हो गया, जून that will comes to June, there will, it will come up to 23 and sun will come up to 23.5 डिग्री तक आ जाएगा सन। तो यहाँ तक आ गया, फिर ये तो दिस विल स्टार्ट मूविंग बैक। तो यहाँ पहले बहुत गर्म था, फिर ये तो क्या हो गया, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये तो इधर से मूव करना शुरू किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये तो वापस यहाँ जून में आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये तो सेंटर में आएगा, सितंबर तक इक्वेटर में आएगा। देन अक्टूबर से सन का पोजीशन होगा इन सादर्न हेमिस्फीयर। बट इफ यू लुक हियर, क्या है यहाँ तो अभी सन नहीं है, सन का प्रेजेंस उधर कम है, तो क्या होगा, एंड द लेटेंट ईस्ट हीट जल्दी, यहाँ हीट वो कॉन्टिनेंटल एरिया वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअली देयर विल बी हाई प्रेशर, एंड ओशियनिक पार्ट वो धीरे से गर्म हो जाएगा, एंड यहाँ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सन आल्सो। तो यहाँ लो प्रेशर होगा, उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि डंडा तो उतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज लेटेंट ईस्ट कैपेसिटी ओशन के लिए है। तो उतना सॉरी डंडा नहीं, गर्म उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो धीरे धीरे वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ लो प्रेशर सेंटर एट ओशियनिक पार्ट। तो क्या होगा, यहाँ से कॉन्टिनेंटल पार्ट से ये यहाँ लो प्रेशर ओशियनिक पार्ट तक पानी ये विंड ब्लॉक करेगा। एंड as it is coming from north and eastern direction, this is known as the northeastern monsoon. So that was the explanation given in the thermal theory of wind. So thermal difference है, because of the thermal difference क्या हो गया, there is wind blowing from continental part to oceanic part and oceanic part to continental part, and that is how the explanation has been given in the thermal theory of wind. But later it was identified ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस से भी नहीं है, there is something more happening. ये क्या है? For that a new theory was made, that is called dynamic theory of wind, that is shifting of intertropical convergence zone. तो डायनामिक है, डायनामिक इज देयर इज सम मूवमेंट ऑफ क्या है, विंड, विंड का मूवमेंट है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ ऐसा है, इफ यू लुक हियर यू कैन सी द इक्वेटर, ज्यादा देखने से यू कैन सी ऐसा इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ से ऐसा डायरेक्ट जा रहा है। आई विल ड्रॉ द इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री, एंड यहाँ 23.5 डिग्री यहाँ भी है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दैट इसका मतलब है द सन विल ओनली मूव अप टू हियर, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा in northern hemisphere, and in southern hemisphere is 23.5 degree तक ही जाएगा। So that is the movement, equator to tropic of cancer, tropic of cancer to equator, then equator to tropic of capricorn, then tropic of cancer to equator। ये हो गया इसका मूवमेंट। तो ऐसा है, तो यहाँ जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगा सन, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर में सन का पोजीशन होगा इक्वेटर में, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दैट इज व्हाई इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दिसंबर में द कोल्डेस्ट 21 दिसंबर ना, सबसे सदर्न हेमिस्फीयर में होगा 20 दिसंबर टाइम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन होगा दिसंबर में, फिर ये वापस जाएगा टुवर्ड्स इक्वेटर। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी टाइम में।
एंड ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन, दोनों साइड में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन होगा इस दोनों साइड में। एंड इक्वेटर में क्या है, लो प्रेशर। ये हो गया, तो क्या होगा, ये सब ट्रॉपिकल हाई से विंड विल ब्लो टू दिस लो प्रेशर सेंटर तक आएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां से दिस इज हाई प्रेशर, यहां से विंड आएगा यहाँ इक्वेटर 0 डिग्री तक। यहाँ क्या होगा, यहाँ से विंड आ रहा है, यहाँ ये मर्ज होगा इसके साथ। ये विंड नॉर्थ, वो नॉर्थर्न साइड से जो विंड आ रहा है एंड सदर्न साइड से जो विंड आ रहा है, दिस विल मर्ज टुगेदर, ये तो मर्ज होगा, और वी विल से इट एज कन्वर्ज। These two wind converge or merge each other. So that portion we will say it as convergent zone. That zone we will say it as convergent. क्या converge हो रहा है, wind converge हो रहा है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एरिया में। दिस इज एक्चुअली ट्रॉपिकल एरिया, तो ट्रॉपिकल एरिया में wind is converging. That is why it got its name इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। क्लियर, ये ऊपर से आ रहा है साउथ, सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर में दोनों साइड से विंड आ रहा है, एंड दैट विल मर्ज एट इक्वेटोरियल रीजन और द ट्रॉपिकल रीजन, एंड व्हाट हैपेंस देयर विल बी कन्वर्जेंस ऑफ विंड, there will be convergence of wind, and that is why this particular area we will say it as intertropical convergent zone. तो ये कन्वर्ज हो गया है। Now we can go to the dynamic theory of wind, that is based on shifting of intertropical convergent zone. That is actually shifting of intertropical convergent zone. ये कैसे होगा, that I will show you. So this is equator. तो हम बोला है इन जून और जुलाई में क्या होगा, सन का पोजीशन यहाँ एक्सट्रीम नॉर्थर्न साइड में होगा, तो क्या होगा, यहाँ बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर है, तो यहाँ से जो विंड आएगा यहाँ से लो प्रेशर तक जाना था, लेकिन क्या हो गया, यहाँ 23.5 डिग्री तक यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, सो दिस विल वीक। ये जो है ना, ये जो विंड यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आ रहे हैं, तो उधर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर तो कम हो गया है, उधर सब ट्रॉपिकल हाई वो तो उसका पावर कम हो गया, तो ऑलमोस्ट दिस इज आल्सो लो प्रेशर सेंटर जैसे हो गया, तो यहाँ से जो विंड आता है उसका पावर कम हो गया, तो क्या होगा, बट यहाँ से जो आ रहा है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ हाई प्रेशर और बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि सन का पोजीशन इधर है, तो यहाँ से विंड एक क्रॉस करके यहाँ बहुत हाई एरिया तक आ जाएगा, एंड वो स्थिर है, इसका तो यह तो पावर कम हो गया इस जगह पे, तो क्या होगा, द कन्वर्जेंस विल हैपेंस आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। इक्वेटर क्रॉस करके ये तो वापस आएगा, डिफ्लेक्शन तो होगा, तो यहाँ से ये तो मर्ज होगा, मर्जिंग, क्योंकि यहाँ पावर कम है, यहाँ पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सन इसी एरिया पे है, सन इसी एरिया पे है, तो यहाँ वीक कर दिया है इस एरिया को, तो हाई प्रेशर को वीकन कर दिया है, यहाँ से विंड ब्लो करेगा, लेकिन उतना पावर इसके पास नहीं है, तो क्या होगा, बहुत वीक है, तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है यहाँ से, तो यहाँ बहुत पावरफुल विंड आएगा, एंड इट विल क्रॉस द इक्वेटर एंड कम्स टुवर्ड्स द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये जो विंड है तो मर्जिंग होगा ऊपर, तो क्या हो गया,
पहले इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस वास यहाँ था, बट ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस अभी इक्वेटर में नहीं हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसका कन्वर्जेंस हो रहा है। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज एक्चुअली जुलाई इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। तो ये देखो, दिस इज, तो इक्वेटर नीचे है, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ हो गया, वो ऐसे ऊपर आ गया है। लुक एट इंडिया, ऑलमोस्ट इंडिया का सेंटर तक आ गया है ना, ये तो ऑलमोस्ट यूपी बिहार तक इसका पोजीशन आ गया है। तो क्या होगा, यहाँ से जो विंड आ रहा है, that will cross and that will carry too much of water, that will cross, तो यहाँ से और यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा, वो सब सही है। तो तो ऐसा शिफ्ट होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से, तो इक्वेटर क्रॉस करके वो नीचे से हवा आएगा, एंड बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग थ्रू ओशियानिक रीजन और वाटर एरिया, वाटर से ये आ रहा है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस से वो वाटर लैडन है वो विंड, एंड देयर विल बी मानसून, देयर विल बी साउथ वेस्ट मानसून। If you look at this, this is the picture, this is the what is happening in July some time में क्या हो गया, यहाँ बर्थ हाई प्रेशर है, यहाँ बर्थ हाई प्रेशर है इस रीजन में। तो क्या है, दिस इज इक्वेटोरियल रीजन, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ आ गया है। तो इधर देखो, जो विंड है वो इक्वेटर क्रॉस करके आ गया, क्रॉस करके यहाँ तक आ गया है। यूजुअली मानसून इज मच स्ट्रॉन्गर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वी लुक हियर, यहाँ तक आ गया है ऑलमोस्ट इस रीजन में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, तो विंड क्रॉस करके उधर आएगा, एंड एज इट इज कैरिंग टू मच ऑफ विंड, सॉरी टू मच ऑफ वाटर, देयर विल बी रेन। दैट इज व्हाई monsoon, southwest monsoon has got too much of precipitation. And in the opposite side में क्या है, अभी ये हो गया एक, बट इन दिसंबर, जुलाई अगस्त दिसंबर जनवरी सीजन में टाइम में क्या हो गया, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया सन का पोजीशन, सन यहाँ से आकर कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर करने के बाद ये तो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ क्या होगा, विंड यहाँ का बर्थ, यहाँ हाई प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि सन का पोजीशन इसी जगह पे है, तो यहाँ विंड, यहाँ लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर वीक हो जाएगा, वीक कर हाई प्रेशर है, तो यहाँ विंड थोड़ा कम ब्लो करेगा इस जगह पे। लेकिन यहाँ से जो आ रहा है हाई प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा, तो क्या होगा, अभी हमको पता है अभी नवंबर दिसंबर से हमारा इधर बहुत ज्यादा ठंडा है, तो यहाँ से जो बहुत ज्यादा ठंडा मीन्स देयर इज हाई प्रेशर है, तो यहाँ से जो हवा है वो इक्वेटर को क्रॉस करके सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, एंड व्हेन इट मूव्स टू अ सदर्न हेमिस्फीयर इसका डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट साइड में, तो वो सब ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इसका डिफ्लेक्शन होगा, एंड इट विल मर्ज विथ दिस जो सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ आ जाएगा, पहले इक्वेटर में था, जुलाई टाइम में कहाँ था, नॉर्थन हेमिस्फीयर में था, लेकिन आफ्टर अक्टूबर नवंबर यस टाइम में क्या होगा, यहाँ आ गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो यहाँ से विंड ऐसा ब्लो हो रहा है। बट इफ यू लुक हियर यू कैन सी ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, इस जगह पे ज्यादा कॉन्टिनेंटल पार्ट, दिस इज एक्चुअली यहाँ कॉन्टिनेंटल पार्ट है, तो वाटर मॉइस्चर कंटेंट कंपैरेटिवली लेसर है लेकिन कंपैरेटिवली लेसर है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो गया वापस इसके नीचे आ गया है बहुत जगह पे, स्पेशली इन बिलो द इंडियन ओशन में ये तो बहुत नीचे आ गया है। सो
what happens? Wind blows like this. So monsoon will northeast monsoon will start blowing at this moment, where the intertropical convergence zone has been come down. So this is the fundament of monsoon. अभी मानसून इतना तक नहीं है, ये आई एम सेइंग अबाउट ग्लोबल मानसून के बारे में अभी बोला है. When we study about India and Indian climate, we have monsoon. इसमें there is influence of jet stream का influence है, एल नीनो ला नीनो का influence है, जो ये क्या है, ये डायनामिक्स ITCZ का भी इंटरैक्शन का इन्फ्लुएंस है. ये सब वी विल स्टडी डिटेल इन इंडियन मानसून, क्योंकि अभी इसमें तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम सब जगहों में इन्फ्लुएंस होगा दिस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के वजह से. ओके, अभी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्लियर हो गया क्या? इसका नोट अभी सर देगा, हम इसका ये दिया है अभी तक. अभी से हम ये नहीं देगा, PDF तो नहीं देगा, वो ये देगा. ओके, नोट बना के दे रहे, इसलिए तो इसमें भी बहुत कुछ हम काम किया है, पूरा पिक्चर ही दिया है आपको पूरा ये करने के लिए. हाँ सर, ये PDF भी दीजिए ना सर, ये भी ये PDF में ना हम जैसे पहले बनाता था ना, उसमें आपको वन वर्ड ये सब हाईलाइट करके दे रहा था ना, तो पूरा नोट बनाने से वो सब उसके अंदर आ जाएगा. लेकिन थोड़ा और पढ़ना चाहिए, इसलिए तो वही दिया. इसमें तो आप देखने से आपको मैक्सिमम ये PDF तो हम सेंड करेगा, लेकिन आपको तो उतना यूज नहीं है, पहले जैसा यूज नहीं होगा. फिर भी आपको ये पिक्चर सब है ना, वो सब मिलेगा. मैक्सिमम पिक्चर से ही हम एक्सप्लेन किया है ना, वो नोट में होगा ये सब डिटेल्स. ओके, ये पिक्चर्स भी होगा नोट में. पिक्चर नोट में तो पिक्चर्स नहीं होगा, पिक्चर्स तो इसमें ही होगा ना, PDF नहीं बना सकते, पिक्चर्स उसमें नहीं दे पाएगा. इसलिए आप सर ये भी सेंड कीजिए ना. हाँ, ये तो सेंड करेगा, लेकिन आपको वो पहले जैसा उतना यूजफुल नहीं है, इसलिए तो वही बोल रहा. ये तो सेंड करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है. ओके, वो ओके, तो आज के लिए बंद करेगा. ओके सर, थैंक यू सर.